हेलो एवरीबॉडी। सो हम कंटिन्यू करेंगे एंड कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो पहले मैं वो कंटिन्यू करूँगी, पहले मैं वो समझाऊँगी एंड देन वील गो फॉरवर्ड, ठीक है। सो आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन आई हैड गिवन यू एज अ होमवर्क, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। सबसे पहले आई टोल्ड यू हैव टू एक्चुअली लुक एट द इक्वेशन, इन व्हाट फॉर्म इज द इक्वेशन। तो ये कैसी फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी 3 वेरिएबल्स, यस, x, y and z, yes, so we can see 3 variables and something xy, then something yz, then something xz. so इसमें कौन सा पैटर्न कैन बी यूज्ड? दिस पैटर्न, यस, कैन वी सी दिस? ये देखो, दिस पैटर्न कैन बी यूज्ड। a square x square, a is just a coefficient, basically it is x square plus y square plus something z square plus 2 into xy something coefficient multiplied ab plus 2ac xz plus 2bc yz. Yes, so this is of that type, this is of this type. if you can see clearly, तो हम इसे ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे. how do we do this? we'll compare this with this. yes, हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद दिस इक्वेशन. yes, the given question, we'll actually compare this with the given question. हम क्या देख सकते हैं? we have a square as 2, a square is written as 2, a क्या होगा? √2. then the y 1 into y square, so b square is 1. yes, comparing this, b square is 1, so we'll get b as 1, and c square is 8, that means c is 2√2. am I clear? and then you can actually verify for all these also, this will also get satisfied. so basically आपको उतना ही सोचना होता है एक्चुअल में, ठीक है, बिकॉज आगे का यूजुअली सेटिस्फाई हो जाता है. ऑलराइट, सो a is √2, b is 1 and c is 2√2. I hope this is clear. and then we can also verify it for 2ab as we know. so 2 into a is √2 into b is 1. so this is 2√2. Alright, then we have okay, and in the question we have over here, if we see, we have minus 2√2. yes, so that means my b term, because either a or either b has to be minus. yes, it has to be minus, it has to be a negative sign. let's see over here, we have one minus sign over here and one minus sign over here. so we can see यहाँ दोनों में common term कौन सा है? x common term है. ओके, x कॉमन टर्म है, यानी जो मेरा x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, माई ईदर x का कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव और माई z का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट विल बी नेगेटिव. लेट्स चेक इट आउट. सो हमने यहाँ पे 2ab लिखा, 2ab वाज √2, इट शुड बी minus 2√2. yes, so I have taken b as -1, b as -1. okay, and 2ac, let's check it out. 2 into a is √2, yes, into c is 2√2. ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, इट इज कमिंग आउट ऑफ 8, बट यहाँ पे नेगेटिव 8 है. सो लेट्स टेक, इट शुड बी -8, सो मैंने c को -2√2 ले लिया, ठीक है. एंड 2bc क्या है? 2bc is 2 into b was -1. yes, it was -1, we have taken -1 as we have concluded in the first one. एंड c भी हमने -2√2 लिया है, तो यहाँ पे भी हमने -2√2 लिख दिया, and we have got 4√2. तो इसका मतलब whatever assumptions and whatever changes we have done above are correct. ठीक है, आपको इस तरीके से you have to make pairs, you have to actually see कि मैं कौन सा नेगेटिव लूँ, कौन सा पॉजिटिव लूँ, and when will I get a correct equation. ठीक है, तो that means मेरा फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या हो गया? my final factorized form is this. yes, it is this. I hope this is clear to everybody. this is √2x minus y and minus 2√2z का होल स्क्वायर. am I clear? so ये इस फॉर्म का था, and we have actually converted in this form. yes, now we will do certain questions. ठीक है, आपका actually this chapter is over. ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है. so today we will do this question. ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, some certain questions. ठीक है, and I'll tell you how to actually solve each of them. ठीक है, तो अब मैं आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चंस ले रही हूँ, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको मिडिल टर्म पे भी क्वेश्चंस करा दिए थे एंड फैक्टर थ्योरम पे भी मैंने इनफ क्वेश्चंस करा दिए हैं. नाउ आई विल गो ऑन अबाउट आइडेंटिटीज़, ताकि आपको मैं हैंग दे सकूँ कि हाउ टू थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द आइडेंटिटी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी सारी याद है। आई विल एक्चुअली गेट यू रिवाइज्ड विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगी, आई विल एक्चुअली राइट इट डाउन फॉर यू। मैंने सारे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सो आई विल टेल यू। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन में समथिंग एज क्यूब देख सकते हो? एंड देन दिस टर्म, now this term doesn't look so मतलब ऐसा, it's not like we have seen it many a times, yes, but मैंने आपको एक चीज़ बताई थी that when we actually write a cube का equation, तो मैंने आपको बताया था you actually what you have to learn, you have to learn 3ab ब्रैकेट में a plus b, yes. so जब मैं उसको ओपन करूँगी तो आई थिंक ऐसा कुछ टर्म बनेगा ना, a square b, ab square, something of this sort. तो दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली एन आइडेंटिटी यूजिंग क्यूब का इक्वेशन। यस, हमें इतना समझ में आ गया। लेट्स गो फर्दर। सो मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? प्लस वाली। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे को हर जगह प्लस साइन दिख रहे हैं, देयर इज नो माइनस साइन, सो आई कैन यूज अ प्लस आइडेंटिटी टू बी सेफ। तो मैंने प्लस आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी का होल क्यूब। व्हाट वाज दैट? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। यस, दिस आई टोल्ड यू, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू टू लर्न। एंड इसी ब्रैकेट को इफ यू ओपन तो तुम्हें a स्क्वायर बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मिलेगा एंड ab स्क्वायर ऑफ सॉर्ट मिलेगा। यस, सो मैंने क्या करा, आई हैव कंपेयर्ड दिस विद दिस। आपको सबसे पहले ना आपकी आइडेंटिटी लिख लेनी है जहां से आपको एक्चुअली रिजेम्बलेंस लग रही है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्चुअली कंपेयर योर क्वेश्चन विद द आइडेंटिटी यू हैव रिटन। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो व्हाट विल आई सी a क्यूब एंड 8a क्यूब। दैट मीन्स मेरा ये a जो है व्हाट आई हैव रिटन इज एक्चुअली 2a का होल क्यूब, इफ आई कैन राइट दैट। यस, एंड b क्यूब अगर मैं देखूं तो b क्यूब, यानी b इज माई b क्यूब ओनली, यानी b का कोफिशिएंट इज 1 ओनली। यस, एंड 12a स्क्वायर b, अब मैं यहाँ पे अगर a की जगह पे सी 12a स्क्वायर b एंड 6ab स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज 3a into b. Now my a was what? a was 2a. Yes, so I have written 2a plus b. Right? I hope this is clear. अगर आप इसको solve करोगे, you will get your answer and you will actually get what you were asked in the question. I hope this is clear. ठीक है? I hope this whole funda is clear. ये मैंने क्या किया है, I hope this is clear. So इसको जब मैं actually combine करूँगी, you will actually get 2a plus b का whole cube. Am I clear? ठीक है? अब हम second question पे चलते हैं. Now in the second question, what we can see is we can see a similar sort of a question जहाँ पे cubes है. Yes, you have cubes. You have a square b, you have ab square. Again, some cube का ही identity use हो रही है. But we have certain negative signs also बीच में. So that means यहाँ पे हो सकता है कि मेरा a minus b का whole cube use हो रहा हो. Yes, we'll expand this. This is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Yes, so again comparison करेंगे तो we can see 8a cube की जगह, that means 8a cube को मैं 2a का whole cube लिख सकती हूँ. Yes, so my first term is completed. Minus b cube, so यहाँ पे minus b cube है, so b cube remains b cube. अगर मैं इस टर्म को पूरा खोलूँ, so इस टर्म को खोला मैंने, so I have written minus, because minus आइडेंटिटी में ही होता है तो minus 3ab as it is लिख दिया मैंने. a minus b की जगह मैंने लिख दिया 2a, which was actually my first a which I have written, and b as it is. Yes, minus b. So मैंने इसको खोला, this also satisfied. That means this is the identity which is used. So इसका मतलब क्या हुआ? What is the answer? That is 2a minus b का whole cube. I hope this is clear. इसे बिल्कुल एक बार वापस प्रैक्टिस करना. What you have to do? You have to actually check the question. ठीक है? You have to actually see कि अच्छा यहाँ पे cubes use हो रहे हैं. There is a negative sign also, might be a minus b का whole cube use हो रहा होगा. And then you have to actually expand and you have to compare the coefficients. ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका एक्चुअली यहाँ पे a जो आइडेंटिटी में होता है वो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, a, दैट इज 2a. यस, तो आपको इस तरीके से कंपैरिजन करना होता है. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. अगेन वी विल सी दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब ये क्या, ये भी आपको कुछ क्यूब वाली फीलिंग दे रहा होगा. यस, बट यहाँ पे एक ही का क्यूब है. वेयर इज अ सेकेंड क्यूब? दूसरा क्यूब तो दिख ही नहीं रहा हमें. एक ही a क्यूब ही दिख रहा है और कोई क्यूब ही नहीं दिख रहा. हो सकता है किसी नंबर का क्यूब हो. भाई कैन वी सी 27 एज 3 का क्यूब? कैन वी सी दैट? है ना, हम देख सकते हैं 27 टू बी रिटन एज 3 का क्यूब. तो हो सकता है 3 का क्यूब, देन दिस इज 125 इज 5 का क्यूब, सो 5a का होल क्यूब ये बन रहा है आपका. एंड देन वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस बाय राइटिंग द सिंप्लीफाइड ऑफ दैट आइडेंटिटी. यस, अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया. लेट्स सी, मैंने 125a क्यूब जो लिखा है उसको कैन आई राइट 5a का क्यूब, है ना.
27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, मैंने आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके समझाया था. नाउ इफ आई एक्चुअली सी, इफ आई थिंक कि 5a माइनस 3, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन, सो वी हैव टू टेक 5a माइनस 3 का होल क्यूब. सो अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूँ तो दिस विल बी फर्स्ट का क्यूब यानी 125a क्यूब, देन माइनस 3 का क्यूब, yes that I have written over here, yes, and I have taken a negative sign also common over here, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 5a माइनस 3 का होल क्यूब, इफ आई एक्चुअली ओपन दिस क्यूब, ठीक है, इसको ओपन करूंगी, आई विल एक्चुअली गेट 5a का क्यूब माइनस 27, yes, हमें माइनस 27 मिलेगा, बट यहाँ पे तो प्लस 27 है इन द क्वेश्चन. तो व्हाट वील हैव टू डू, we'll have to actually take minus common in whole of this equation. तो मैंने यहाँ पे whole of this equation में minus common ले लिया. Now we can see a plus sign with the first term and 27 के साथ negative देख सकती हूँ. Now I can write this as this. Yes, अब आपको I hope clear हो गया होगा. So 125a cube, then I have got plus 27. If I directly open this, yes, plus 27 मिल जाएगा like this, and then minus 3ab, then plus 3ab, yes, here I have written that, and here is the second term. Now this is all got justified by the equation, the identity that I have used. अगर मैं इसको open करूँ, I'll get 125a cube minus 225a square plus 135a minus 27. I hope this is clear. And हमारा exactly the question we have got with a minus sign. हमने minus sign common लिया था तो हमें question में यहाँ पे मिल गया. So what does that mean? मतलब मेरे पास minus common and 5a minus 3 का whole cube is there. तो we'll get actually the question. Yes. तो मतलब मेरा आंसर क्या हुआ? With a minus sign common, I've got the equation. Yes, 5a minus whole cube with a minus sign common. ठीक है, आपको मतलब ये भी ध्यान देना है while actually asking for the question कि क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ या I have to take a minus sign common as well. So हो सकता है you have to take a minus sign common. ठीक है, let's go further. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. So in this question again you can see certain cubes. Yes, you can see certain a square b, ab square. Again ये क्यूब का ही फॉर्मूला हो सकता है. So मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है टर्म्स की. 6a क्यूब as been written as it is. इसको मैं इधर ले आई हूँ with this. So minus 144 a square b. Okay. Then उसके बाद plus 108 ab square I have written as it is. Then minus 27 a b cube I have written like this. Now looking at this, we can actually see with there are negative signs, so we can actually identify कि हो सकता है a minus b का whole cube की identity लग रही हो. So a cube minus b cube minus 3ab a minus b. I hope this is clear. Yes. तो अगर आपके पास ये identity use हो रही है, so how I can compare this with this now? How can I compare? अगर मैं 64 a cube देखूँ और यहाँ पे simple identity में a cube होता है, इसका मतलब मेरा क्या है? 4a का whole cube है 64 a cube. So my a cube is 4a का whole cube. Yes. Now if I compare this with this, so मेरा यहाँ पर 27 b cube है, yes, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे minus b cube. That means 3b का whole cube is the second term, yes. And now if I actually simplify the बीच का दो terms, ये middle terms को अगर मैं split करती हूँ या check करती हूँ, तो minus 3ab as I written, a minus b, so a is my 4a and b is my 3b, yes. So मैंने यहाँ पे as it is लिख दिया according to the identity and I actually get perfect. This is the perfect term which I get. So that means what I have actually concluded कि मेरा actual answer क्या है? 4a minus 3b का whole cube. We never had to take any minus common, directly actually comparison हो सका इसमें. When you actually see कि यहाँ पे direct comparison नहीं हो पा रहा है, where I am thinking that, तो आप minus का इन common ले लिया करो. Okay? Now this is an important question, ठीक है, and this is an identity also which is not written directly in your NCERT, but ये एक identity होती है which you actually have to learn. ये identity, ये जो formula है ना, ये पूरा आपको learn करना होता है, ठीक है. And this is basically, I'll read it for you. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half of x plus y plus z and multiplied by in the bracket x minus y का whole cube whole square plus y minus z का whole square plus z minus x का whole square. Now this is the identity you have to learn. ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है that we have to actually identify this, verify this identity. I'll tell you how to verify also, क्योंकि वेरिफिकेशन का भी एक पूरा मेथड होता है. I'll tell you that how to do. But for now आपको ये आइडेंटिटी याद भी करनी है because this identity is correct. ये आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है and you have to learn this identity. ठीक है, एक दो बार अपनी कॉपी में लिखना. You will actually learn this identity. You have to learn this identity. It's a bit difficult but it's easy. और एक ही आइडेंटिटी है ऐसी है जो ट्रिकी है थोड़ी सी.
ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हाउ डू वी वेरीफाई व्हेन वी आर आस्क्ड टू वेरीफाई इन सर्टेन क्वेश्चन, हमें क्या करना होता है, सी दिस साइड ऑफ द पूरा इक्वेशन इज सेट टू बी द LHS, आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज द RHS, ठीक है, इसको कहते हैं हम RHS। व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू, वी हैव टू एक्चुअली पिक वन ऑफ RHS, आई मीन LHS और द RHS, एंड वी हैव टू एक्चुअली ट्राई टू मेक इक्वल, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा यार देखो LHS को तो मैं सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकती, इट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, है ना। तो मैं RHS को मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, देन देयर आर ब्रैकेट्स, आई कैन ओपन द ब्रैकेट्स एंड आई कैन सी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये LHS के इक्वली आ रहा हो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई हैव पिक्ड अप द RHS पार्ट, ठीक है, मैंने RHS पार्ट पिकअप करा, आई हैव रिटन द क्वेश्चन ओवर है फॉर योर क्लैरिटी कि ये RHS पार्ट है, ओके। Now what I have done, I have basically written the first two terms as similar, ठीक है, सेम लिख दिया मैंने as it is. I have opened the squares. I told you x minus y का whole square का formula क्या होता है, x square plus y square minus 2xy. So this I have written. Then plus with the plus sign, this plus sign, yes. Now y minus z का whole square. How can I write that? Y square plus z square minus 2yz. Now z minus x का whole square, how can we write this as z square plus x square minus 2xz. I hope this is clear, ठीक है। तो पहला मेरा ब्रैकेट मैंने खोल दिया। Now what do I have to do, I have to multiply this bracket with this bracket. I hope this is very easy for you all. पहले क्या करेंगे, पहले x टर्म को हम हर चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। So if I actually do that, ठीक है, what I have done over here, look here, this step is just a simply the kind of like यहाँ पे x square है, we have x square over here also, तो मैंने 2x square लिख दिया है, then y square है, so I have written 2y square just to simplify this, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये वाले टर्म क्लियर बना दिया है। Now what you have to do, the important part is you have to actually multiply these two brackets. तो कैसे करोगे, सबसे पहले x को with all the term multiply करोगे, so I have multiplied x with all the terms, then I have multiplied y with all the terms, and then I have multiplied z with all the terms, ठीक है। Now over here I could see certain terms to be cancelled, ठीक है, मैं यहाँ पे actually cancel देख रही थी। Please solve this question on your own ताकि आपको समझ में आए। So I could see many terms to be actually cancelled out, ठीक है। तो मेरे पास finally जो बचा ना, that was 2x cube minus 6xyz plus 2y cube plus 2z cube and with a half multiplied, ठीक है। तो मेरे पास ये बचा। Now if I actually divide 2 by each one of the term, तो क्या बचेगा, x cube minus y plus y cube plus z cube minus 3xyz, and this is what was written in the LHS part. So we have actually concluded that LHS is equal to RHS and hence it is verified. You have to actually do this question like this only, ऐसे ही करना है आपको। You have to actually take the RHS part, you have to actually solve the RHS part one by one, and then you have to tell कि अच्छा LHS equal to RHS hence verified. This is the step actually how do we actually solve the verify type of a question, ठीक है। Now I'll tell you one more question कि मैं क्यों बोल रही थी दैट दिस आइडेंटिटी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो लुकिंग एट दैट आइडेंटिटी, इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ x plus y plus z is 0, then we have to show कि x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Now this is also very important. ये भी आपको एज एन आइडेंटिटी एज अ न्यू फॉर्मूला याद रख लो इसको कि if x plus y plus z is equal to 0, then this is what we get. Now this is something I will actually prove to you, but आपको ये याद रखना है एज एन आइडेंटिटी, अगेन एज अ न्यू आइडेंटिटी, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। आई टेल यू हाउ टू वेरीफाई दिस, ठीक है। ये एक्चुअली ऊपर का ही है व्हाट आई हैव रिटन, अगेन हमने जो ऊपर अभी वेरिफिकेशन करा था दैट इज द सेम आइडेंटिटी आई हैव रिटन ओवर है। अब देखो इफ आई इन द RHS अगर मैं देखूँ x प्लस वाई प्लस जेड एज आई टोल्ड यू 0, तो ये पूरा RHS 0 हो गया, यस पूरा RHS इज 0। Now what does that mean? X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is 0. Yes. Now तो अगर मैं 3xyz को इधर लेके जाऊँ तो what will I get? X cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz and hence I proved that. Now this actually I have proved, but actually आपको as an identity again इसको याद रखना because this identity पे भी अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ठीक है। आपको पता चलेगा how this identity is so important. प्लीज इस आइडेंटिटी को भी याद रखना, एज एन आइडेंटिटी याद रखो। अगेन इट्स अ लॉजिक, आई नो कि अगर आप फर्स्ट जो मैंने आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन करवाया वो आइडेंटिटी याद रखोगे तो ये आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, बट जनरली आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन कभी करना नहीं होता है। यू एक्चुअली हैव टू डू जस्ट x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz,
इतना ही आपको क्वेश्चन जनरली आता है, यू डोंट हैव टू सॉल्व सच अ बिग इक्वेशन, ठीक है, एक्चुअल में इफ आई टेल यू, बट फॉर साइड प्लीज इसको याद रखना, दिस फुल आइडेंटिटी हैज टू बी रिमेंबर्ड, दिस फुल आइडेंटिटी हैज टू बी रिमेंबर्ड. सो देर आर 2 आइडेंटिटीज यू हैव टू एक्चुअली मोर लर्न. ये 2 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, ठीक है, एज आइडेंटिटीज इनको अलग अलग याद रख लेना, ठीक है. ओके, नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी, व्हाई द न्यू आइडेंटिटी विच आई जस्ट प्रूव्ड वो क्यों इंपॉर्टेंट है. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू एक्चुअली डू इट बाय विदाउट कैलकुलेटिंग. अरे भाई -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, एक तो पहले इसको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में. कहाँ हम 12 का क्यूब सॉल्व करते रहेंगे, कहाँ हम 7 का क्यूब सॉल्व करते रहेंगे, कहाँ हम 5 का क्यूब सॉल्व करते हैं, एंड देन एडिंग बोथ ऑफ ऑल ऑफ देम. तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है. येस आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी हैव टू एक्चुअली चेक कि क्या -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या ये 0 दे रहा है मुझे. एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने बताया था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिस इज इक्वल टू 3xyz एज आई हैव रिटन ओवर हियर. तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है कि नहीं है. सो एज आई कैन सी x प्लस वाई यानी -12 प्लस 7 प्लस 5 इज एक्चुअली 0. दैट मीन्स मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ. दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 एंड इंटू 5. सो एज आई हैव कैलकुलेटेड वाया -1260. सो दिस विल बी योर आंसर. इस क्वेश्चन में क्या इजी पड़ा आपको, कैन एनीबडी टेल मी. इस क्वेश्चन में ये इजी हुआ कि भैया हमें सारे क्यूब सॉल्व नहीं करने पड़े, हमें डायरेक्टली हमारी आइडेंटिटी लग गई और हमारा सॉल्व हो गया. एंड ये एक्चुअली दीज आर सर्टन आइडेंटिटीज, दीज आर सर्टन ट्रिक्स जो आपका एक्चुअली काम आते हैं. जनरली लोग पढ़ाते नहीं है दिस एज एन आइडेंटिटी, ठीक है, दिस आइडेंटिटी कोई पढ़ाता नहीं है, बट यू एक्चुअली हैव टू लर्न दिस इज एन आइडेंटिटी बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. एंड दीज क्वेश्चन एक्चुअली कम इन योर एग्जाम्स, ठीक है. नाउ लेट्स सी फॉर द सेकंड वन, जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, ठीक है. तो सेकंड एग्जांपल क्या है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब. दिस इज द क्वेश्चन. अगेन मैं 28 का क्यूब कहाँ तक सॉल्व करती रहूंगी, 15 का क्यूब कहाँ तक सॉल्व करती रहूंगी, 13 का क्यूब कहाँ तक सॉल्व करती रहूंगी, एंड देन एडिंग देम. दिस इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क. इसको सिंपल करने के लिए हाउ डू वी डू इट, विल एक्चुअली चेक कि अच्छा ये तो a का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब है यार, ये हो सकता है 3xyz के इक्वल हो इफ my 28 -15 -13 actually sums out to be 0. yes, तो let's see that. तो मैंने देखा, मैंने कहा 28 -15 -13 actually gives us 0. तो that means मैं वो आइडेंटिटी लगा सकती हूँ. that means my answer will be 3 into 28 into -15 into -13 that gives us 16380. so this is the answer for that question. I hope this is clear. and मैंने आज आपको 2 और आइडेंटिटी सिखाई हैं on the basis of question solving only, ठीक है. एक आइडेंटिटी कौन सी है, वन आइडेंटिटी इज दिस वन आइडेंटिटी, ठीक है. ये मैंने थ्रू क्वेश्चन आपको सिखाया है, बट दिस आइडेंटिटी हैज टू बी रिमेंबर्ड. इसको याद रखना है एज इट इज याद रखना, बिकॉज दिस इज ऐसे एज इट इज याद रखना इज ईजियर. यस, बिकॉज ब्रैकेट खोल दोगे देन दिस इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसको एज इट इज याद रखना दैट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है. तो इसको एज इट इज याद रखना है. एंड द सेकेंड आइडेंटिटी व्हाट आई टोल्ड यू टू लर्न इज दिस वन. यस, बेसिकली ऊपर से ही प्रूव हो रहा है, बट यू एक्चुअली हैव टू लर्न दिस. क्योंकि ऐसा क्या होता है उस टाइम पे ना, यू डोंट गेट स्ट्राइक बाय दिस आइडेंटिटी. ये स्ट्राइक नहीं होता है दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. तो क्या ये इसका इक्वल होता है? येस, यू हैव टू एक्चुअली लर्न दिस. इसको प्लीज याद कर लेना. ओके, एंड दिस इज अ वेरी इजी वन. क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. आई होप दिस इज क्लियर एंड आई हैव सॉल्व्ड एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कुड. एंड मैंने आपको न्यू आइडेंटिटीज भी सिखा दी इन दैट गो ऑल्सो. So I hope today's lecture is clear to you. And for today, I think this is enough. नहीं तो overdose हो जाएगा. All right, and I'll meet you tomorrow. I'll take some more questions of this identity, and then we'll start with a new chapter. ठीक है? So if you have liked the session, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. That is Prakash Academy. For today, I'll take a leave. Thank you.